سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 6 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے کر دیے گئے۔ ادرک 1200، لہسن 600، لیموں 280، ٹماٹر 160 اور پیاز 120 کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مٹر 550، کریلے اور ٹینڈے 220، اروی 880، بھنڈی 160، آلو 100 کلو میں بکنے لگے ہیں۔ انار بدانہ 1000، انگور 480، آڑو 400، آم اور سیب 350 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 6 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے ہو گئے۔ ادرک 1200، لہسن 600، لیموں 280، ٹماٹر 160 اور پیاز 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مٹر 550، کریلے اور ٹینڈے 220، اروی 180، بھنڈی 160، آلو 100 روپے کلو میں بکنے لگے ہیں۔ انار بدانہ 1000، جبکہ انگور 480، آڑو 400، آم اور سیب 350 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ آج کے سرکاری ریٹ لسٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں آج کے سرکاری ریٹ لسٹ میں 6 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے کر دیے گئے۔ ادرک 1200، لہسن 600، لیموں 280، ٹماٹر 160 اور پیاز 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مٹر 550، کریلے اور ٹینڈے 220، اروی 180، بھنڈی 160 اور آلو 100 روپے کلو میں بکنے لگے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام صارف کے لیے اشیاء ضروریہ کے نرخ مارکیٹ کے لیے برابر کر دیے گئے ہیں۔ صرف بے نظیر سپورٹ پروگرام کے صارف کو سبسڈائزڈ اشیاء محدود مقدار میں مل رہی ہیں۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز صرف بے نظیر سپورٹ پروگرام والے صارف کے سٹور بن گئے۔ عام شہریوں کے لیے سبسڈی تقریباً ختم ہو گئی۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے صارفین کو سستی اشیاء مل رہی ہیں۔ عام صارف کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری فائدہ مند نہ رہی۔ عام صارف کے لیے آٹا 10 کلو ریٹ 1420 روپے ہے۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے صارف کے لیے آٹے کا تھیلا 448 روپے ہے۔ بے نظیر پروگرام کے صارف کو بھی محدود مقدار میں آٹا دیا جا رہا ہے۔ عام صارف کے لیے گھی کا نرخ 423 روپے فی کلو، جبکہ بے نظیر پروگرام صارف کے لیے 353 روپے فی کلو ہے۔ عام صارف کے لیے چینی کا نرخ 146 روپے فی کلو اور بے نظیر پروگرام صارف کے لیے چینی 100 روپے فی کلو ہے۔ شہری کہتے ہیں جو لوگ بے نظیر پروگرام میں رجسٹر نہیں ان کے لیے اب کوئی فائدہ نہیں، تاہم بے نظیر پروگرام والے مطمئن ہیں۔ کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ ابھی میں آٹا لینے آیا ہوں، چینی لینے آیا ہوں، گھی لینے آیا ہوں، مجھے نہیں ملا۔ بولتے ہیں آپ کا یعنی آپ کو سبسڈی نہیں ملی، آپ کا بے نظیر پروگرام ہے، آپ کا شامل نہیں ہے۔ پرائزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں، مگر کم پرائز میں نہیں مل رہا کچھ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر نئی پالیسی کے بعد عام شہریوں کی آمد انتہائی کم ہو گئی ہے، جس سے اشیاء ضروریہ کی سپلائی قدرے بہتر دیکھی جا رہی ہے، لیکن سفید پوش طبقہ پس رہا ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ پنجاب کابینہ کا ورکرز کو ریلیف دینے کے لیے احسن اقدام۔ ورکرز کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کم از کم تنخواہ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 25واں اجلاس۔ کابینہ نے معذور افراد، بزرگوں اور طلبہ کے لیے میٹرو ٹرین اور میٹرو بس سروس پر فری سفر کی سہولت کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلہ پالیسی کے لیے کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی۔ اسموک سے نمٹنے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل۔ صحافی اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 ارب روپے سے انڈورمنٹ فنڈ کے اجرا کی منظوری۔ سکول اپناؤ پروگرام کے تحت پنجاب ایجوکیشن لینڈسکیپ کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ قائد اعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے ناموں کی منظوری۔ پنجاب مینٹل ہیلتھ ترمیمی ایکٹ 2014 کے تحت پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پروگرامز اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی اسکیموں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں میٹرو بس سروس کا روٹ کشومتا سے قصور تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی حکام نے بس کو تجرباتی طور پر گجومتا سے قصور تک چلایا۔ 15 میٹرو بسوں کا اسکواڈ عام ٹریفک کے ساتھ قصور روڈ پر چلایا گیا۔ مسافروں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے قصور روڈ پر میٹرو بس کے لیے ایک لائن کو بھی مختص کیا جائے گا۔ میٹرو بس فعال ہونے کے 12 سال بعد سروس میں توسیع کی گئی ہے۔ میٹرو بس کے بڑھتے حادثات میٹرو ٹریک کی حالت زار بڑی وجہ قرار۔ اسٹیشنز کے جنگلے بیریئرز، الیکٹریکل سامان کی ٹوٹ پھوٹ اور خراب لائٹس کا اب انکشاف ہوا ہے۔ لاہور نیوز تفصیلات سامنے لایا، رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔
मेट्रो बस के ट्रैक पर हादसात मामूल बन गए। मेट्रो ट्रैक की हालत जार बस हादसात की बड़ी वजह करार। स्टेशन के जंगले, बैरियर्स, इलेक्ट्रिक सामान की टूट फूट और खराब लाइटों का इंकशाफ। ठेका दे दिया मगर मुरम्मत और बहाली का काम शुरू न हो सका। शाहदरा से गज्जूमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में इदारों की नाअहली भी शामिल। लाहौर न्यूज तफसीलात सामने ले आया। मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब हैं। ट्रैक और एड ग्रेड पर लगे 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, एक ट्रांसफार्मर भी जल चुका। एड ग्रेड की 10 अर्थिंग पिट्स, डेटा कैबिन और 2 एयर कंडीशनर्स भी गैर फाल हैं। मेट्रो स्टेशन की 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर नस्ब 31 पंखे भी बंद हैं। मेट्रो बस की मुरम्मत के लिए 3,86,41,000 रुपए का तखमीना लगाया गया, मगर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रकम खर्च न की। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो ट्रैक की मुरम्मत और बहाली जारी है। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, लाहौर को खूबसूरत बनाने के दावे हवा हो गए। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पर कसीर फंड्स भी शहर को खूबसूरत नहीं बना सके। शहबाज कलंदर अंडरपास ज़बूहाली का अब शिकार हो गया है। शहबाज कलंदर अंडरपास LT और टीपा की अदम तवज्जही का अब शिकार। फिरदौस मार्केट के करीब बने अंडरपास के बैरल पर लगा बोर्ड टूट फूट गया है। नाम के हरूफ तहज्जी भी गिर गए। खूबसूरत बोर्ड अब बदनुमा दिखाई देने लगा है। LT और टीपा हुकाम अंडरपास की तज़ीन और आइश और मुरम्मत का काम कराना भूल गए हैं। मौसम गर्मा में भी LPG माफिया सरगर्म है। गरीब का ईंधन LPG पहुंच से बाहर हो गया। शहर में कहीं भी LPG ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं है। शहरी परेशान है। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा में भी LPG की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। LPG माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। शहर में कहीं भी LPG ओगरा के निर्ख पर दस्तयाब नहीं। ओगरा की जानिब से LPG की फी किलो कीमत 240 रुपए 38 पैसे मुकर्रर की गई। शहर में LPG 270 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। कीमतों में मनचाहे इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। रिक्शा चलाकर 20,000 बिजली का बिल अदा करें, LPG खरीदें या बच्चों के लिए रोटी, समझ नहीं आती। एक रिक्शे में एक बंदे का जो बिल है घर का वो 15-20 हज़ार आ जाए बगैर AC के, तो वो क्या करेगा, खाएगा क्या, तो बच्चों की फीसें क्या देगा, क्या कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो LPG ਦੇ 250 रुपए ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 280 ਦੇ ਰਿਹਾ, कोई 290 दे रहा है। शहरियों का कहना था कि घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। खबर शामिल करें, बिजली चोरों के गिर्द घिरा मजीद तंग हो गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर क्रैकडाउन जारी। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 5 रोज में 1273 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों से 18 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। लेस्को की जानिब से 1272 इंदराजे मुकदमा की दरखास्तें दायर की गयी। पुलिस ने अब तक 796 मुकदमा दर्ज कर लिए। 5 रोज में बिजली चोरी में मुलविस 83 लेस्को सार्फिन को गिरफ्तार किया गया। लाहौर, कसूर, ननकाना, ओकाड़ा और शेखुपुरा में कार्रवाइयों के दौरान 1000 से ज्यादा घरेलू सार्फिन पकड़े गए हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने 3,403 मुश्तबा कमर्शियल और 35,607 मीटर्स को तब्दील कर दिया, जबकि 16 करोड़ की गैस चोरी पकड़ ली गई है। जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न लाहौर बिलाल असगर का कहना था कि घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले 102 सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 16 करोड़ रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई है और 45 सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 240 सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गैस चोरी रोकने के लिए लाहौर रीजन की 535 सनतों में साइबर लॉक लगा दिया जाएगा। LTA सिटी हाउसिंग स्कीम को कब्जा माफिया से फ्री करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। कब्जा माफिया की जानिब से शदीद मज़ाहमत, इलाका मैदान जंग बन गया। LTA ने 50 से ज़ायद गैर कानूनी अमलाक को गिरा दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। LDA सिटिंग हाउसिंग स्कीम में कब्जा माफिया के खिलाफ LDA का ग्रैंड क्रैकडाउन ऑपरेशन के लिए LDA के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद थी। कब्जा माफिया का LDA की टीमों पर हमला, फायरिंग की, पुलिस की 2 गाड़ियों की तोड़फोड़, स्क्रीनें तोड़ दी। मुजाहमत के दौरान LDA का अमला भी जख्मी हुआ। LDA ने ऑपरेशन करते हुए 50 से ज्यादा गैर कानूनी इमलाक को गिरा दिया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ LDA ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے CTO لاہور سے مذاکرات کامیاب۔ مذاکرات میں مطالبات منظوری کی یقین دہانی کے بعد ایسوسی ایشن نے دھرنا ختم کر دیا۔ قبل ازیں مزدہ ڈرائیورز نے ریلوے اسٹیشن سے احتجاجی ریلی نکالی اور یتیم خانہ چوک بابو صابو پر دھرنا دیا۔ سڑکیں بند ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زین علی کی رپورٹ۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے CTO لاہور سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات میں مطالبات منظوری کی یقین دہانی کے بعد ایسوسی ایشن نے دھرنا ختم کر دیا۔ دھرنے کے دوران ایسوسی ایشن وفد کی CTO لاہور مستنصر فیروز سے ملاقات ہوئی۔ CTO نے جائز مطالبات کی تکمیل کی یقین دہانی کروائی۔ DSP ٹریفک کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ منی مزدہ ڈرائیورز نے ریلوے اسٹیشن سے احتجاجی ریلی نکالی۔ یتیم خانہ چوک بابو صابو پہنچ کر اسے ٹریفک کے لیے ہر طرف سے بند کر دیا۔ گاڑیاں پھنسنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر منی مزدہ ایسوسی ایشن حاجی شیر علی کا دھرنے میں کہنا تھا کہ 1 ماہ سے ہم متعلقہ اداروں سے وقت مانگ رہے تھے لیکن کسی نے ہمارے لیے وقت نہیں نکالا۔ ہماری گاڑیوں کے بلا جواز چلان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ وکس جو کمپنی ہے یہ مزدوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ بسوں کے لیے آئی ہے۔ یہ بسوں کی پاسنگ کریں، ہماری گاڑی جیسے پہلے پاسنگ MV بھی کرتا تھا وہی پاسنگ کرے، اس کا ریونیو بھی گورنمنٹ پنجاب کو جائے گا، ہمارے پنجاب کا فائدہ ہوگا، ہمارے گورنمنٹ کا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم وکس سے پاسنگ نہیں کروانا چاہتے، نہ ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے۔ احتجاجی شرکا کا کہنا تھا کہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے کام نہیں، اوپر سے ہمارے 8 اور 10 ہزار کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ ہماری گاڑیاں وکس پہ نہیں جا سکتی، اس لیے ہم پاسنگ وکس کی نہیں مان سکتے۔ ان کی یہ گنڈا گردی وکس کی جو ہے یہ بند کرانی ہے۔ دوسرا ہمارا یہ دھوئیں کی وجہ سے ناجائز چلان کرتے ہیں۔ ہر گاڑی انجن جو ہے ڈیزل انجن والی گاڑی ہمیشہ دھواں مارتی ہے۔ ظالمانہ رویہ انہوں نے اپنا صرف وکس نو راضی کر رہے ہیں اور کسی نے راضی کر رہے پاکستان کا نہیں سوچتے۔ CTO سے ملاقات میں ٹرانسپورٹرز کو کمرشل لائسنس جاری کرنے کے لیے ورکشاپ کے انعقاد کا بھی حکم دیا گیا۔ CBD پنجاب نے گھوڑا چوک فلائی اوور کی تعمیر کے سلسلے میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ نے پورے شہر میں سائن بورڈ لگا دیے ہیں۔ CTO لاہور نے 9 انسپیکٹر، 42 وارڈنز اور 22 ٹریفک اسسٹنٹ پر مشتمل ٹیم تعینات کی ہے۔ ٹریفک ڈائیورژن پلان کے مطابق والٹن روڈ سے کیولری، گلبرگ اور فردوس مارکیٹ جانے کے لیے کیولری گراؤنڈ اسٹریٹ نمبر 2، 5 اور 6 مختص کی گئی ہیں۔ گلبرگ اور فردوس مارکیٹ سے والٹن روڈ کے لیے خورشید عالم چوک سے RA بازار اور وہاں سے بائیں مڑ کر باراستہ احمد بخش روڈ سے جناح فلائی اوور کیولری جا سکتے ہیں۔ CEO CBD پنجاب عمران امین کا کہنا ہے کہ ٹریفک پلان شہریوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ تعمیراتی عمل کے دوران ٹریفک پلان پر عمل کریں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں شہر لاہور میں پاسپورٹ کا حصول چیلنج بن گیا ہے۔ گارڈن ٹاؤن آفس کے باہر شہریوں کا رش، دھوپ میں کھڑے مرد اور خواتین کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل علی۔ کوئی بھی سرکاری کام ہو خواری پکی ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے تو پھر بھی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ پاسپورٹ آفس میں شہریوں کی لمبی قطاریں، بیٹھنے کی جگہ نہ پانی میسر، شہر کے 4 پاسپورٹ دفاتر میں رش کے باعث ایجنٹوں اور ٹاؤٹ مافیا کا راج۔ گارڈن ٹاؤن آفس کے باہر ہر قدم پر ایجنٹ موجود، لائن میں نہ لگنے اور VIP پروٹوکول کے لیے ریٹس مقرر کر دیے۔ پاسپورٹ آفس کے گارڈز بھی مبینہ طور پر ایجنٹوں کے سہولت کار بن گئے۔ چور دروازے سے آفس کے اندر داخلے کا 1000 سے 1500 تک وصول کیا جا رہا ہے۔ شہری گارڈن ٹاؤن آفس کے باہر دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ سائلین نے الزام لگایا ہے کہ پیسوں کے بغیر اندر جانا ناممکن ہے۔ گھنٹوں لائنوں میں لگے رہتے ہیں، پیسے دینے والوں کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ جو پیچھے سے آ رہے ہیں 2-2 گھنٹے پہلے، وہ اندر جا کے اپنا کام کرو، اور ہم جیسے لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جو عملہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ان ڈیلروں کو ہائر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیلر وہاں سے کرپشن کرتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ پیسے کے بغیر یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، جو مرضی کر۔ یہاں پہ اگر وہ 3000 روپے فیس ہے پاسپورٹ کی، 1500 روپے ایجنٹ اندر بھیجنے کا لے رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کاشف کلیم کا کہنا تھا کہ ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کے لیے FIA کو جلد درخواست دیں گے۔ لائنوں سے بچنے کے لیے لوگ ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹتے ہیں۔ بلیٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شہر کا موسم خوشگوار، ہوا میں نمی کا تناسب 74% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 133 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں ہلکی بارش کی پیش گوئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ آج صبح سویرے سے
یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ہوائیں بھی چل رہی تھی اور آسمان پر جو ہے وہ ہلکے بادل بھی موجود تھے. تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ 10% امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں بارش برسنے کے, لیکن اگر بارش بھی برستی ہے تو یہی دیکھا جائے گا کہ شہر کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی ہی ریکارڈ کی جائے گی. تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد سے شہر لاہور میں اچھی بارشوں کا امکان ہے, جس کے باعث درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی نمایاں کمی نظر آئے گی. اگر بات کر لی جائے آج کے دن کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے. اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ 74% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست میں 12ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 133 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو آج یہی دیکھا جائے گا کہ سارا دن سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سامیہ سعید, آپ موسم کا احوال بتا رہی تھیں. اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب جاری ہے. براہ راست مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وطن عزیز کے بہادر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب جاری ہے. 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کا آج 58واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. قوم کے بہادر سپوت نے جرأت اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کی. بزدل دشمن نے حملہ کیا تو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے. جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. خصوصاً ہمارے میجر عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جوار رحمت کا جگہ عطا فرما. ہمارے شہداء کی ان عظیم الشان قربانیوں کے طفیل ہمارے وطن عزیز کو ظاہری اور باطنی تمام شرور اور فتن سے اپنی حفاظت نصیب فرما. ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے حفاظت عطا فرما. اسے دن دگنا رات دگنا ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. شہید سلام سلام بند.
मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत और इसकी तकरीब जो है वो जारी है। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का आज 58वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। कौम के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया तो उसकी राह में सीसा पिलाई दीवार बन गए। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत है और शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब जारी है। मेजर अजीज़ भट्टी ने 12 सितंबर को भारतीय फ़ौज के टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सप्लाई बेहतर होने पर ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 2 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 510 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 1 रुपया फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 327, परचून रेट 340 रुपये मुकर्रर है। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, कीमत में इस्तेहकाम। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 303 रुपये पर बरकरार है। अंडों की पेटी 8,970 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताया जा रहा है, सप्लाई बेहतर होने पर ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी आ गई है। मुर्गी का गोश्त 2 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 510 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 1 रुपया फ़ी किलो कमी भी देखी गई। जिंदा ब्रायलर होल सेल 327, परचून रेट 340 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, कीमत में इस्तेहकाम। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 303 रुपये पर बरकरार है, जबकि अंडों की पेटी 8,970 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 2 रुपये सस्ता हुआ है, फ़ी किलो कीमत 510 रुपये हो गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर के दाम में 1 रुपया फ़ी किलो कमी भी आई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमतें जो है मुस्तहकम होने लगी हैं, क्योंकि ब्रायलर की खपत जो है वो गैर मामूली तौर पर कम है और सप्लाई जो है बेहतर होने पर कीमतें जो है मुसलसल कम की जा रही है। आज की 2 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर की कीमत में कमी देखने को मिल रही है। 512 रुपये फ़ी किलो से ब्रायलर जो सस्ता करके 510 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 1 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 327 रुपये, परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 340 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमतों की गुज़श्ता कई दिनों से 303 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं, लेकिन ये कीमतें सरकारी महकमे तक मौजूद है, क्योंकि मार्केट में शहरियों को जो अंडे हैं वो फ़ी दर्जन 320 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अंडों की पेटी 8,970 रुपये की सतह तक पहुँच चुकी है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें अब कम होने लगी हैं, क्योंकि ब्रायलर जो है वो ऐसा अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है और यही वजह है कि ब्रायलर की आगे जो है वो कम हुई है। डिमांड एंड सप्लाई में तेजी आने के बाद आज 910 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने तफसीलें आगाह किया। बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 101 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 37 नए मरीज सामने आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। डेंगू फिर सर उठाने लगा, मरीज बढ़ने लगे। लाहौर में 37 नए मरीजों का इजाफा। शहर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 25 मरीज जेर इलाज हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की तरह रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रोज 29 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान के मुताबिक मुल्तान में गुज़िश्ता रोज 17 और फैसलाबाद में 6 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 79 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 59 बेड्स डेंगू मरीजों के लिए जेर इस्तेमाल हैं। कैमरा टीम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, लाहौर और रावलपिंडी में इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म हो गई। मुहिम के दौरान 9,94,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। लाहौर में 2,25,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया था। मुहिम में 7,400 से ज़्यादा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। पोलियो मुहिम लाहौर की 29 यूनियन कौंसिलों में मुनक्किद की गई है। पंजाब पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिज़र अफजाल का कहना है कि मुहिम के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए हैं। मुहिम के कवायद का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मियां मोहम्मद अफजल करीम ने PTI छोड़ दी। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। लाहौर प्रेस क्लब में मियां मोहम्मद अफजल करीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। कहा कि 9 मई के वाक़े से पाकिस्तान और पाक फौज की साख को नुकसान पहुँचा है। 9 मई के वाक़ात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्लुक़ी का ऐलान करता हूँ। मेरा इस पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है। 9 मई के वाक़े पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज की साख को बहुत नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाक फौज है तो पाकिस्तान है। मियां मोहम्मद अफजल करीम का मजीद कहना था, मैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। आइंदा सियासी मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत से करूँगा। मियां फजल करीम NA 157 वेहाड़ी से उम्मीदवार हैं। महंगाई के हर शोबे पर वार LTA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस भी दुगना हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इंतकाल की फीसों में इजाफे के बाद टाउन प्लानिंग की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। LDA ने घर बनाने की मंजूरी का प्रोसेस भी महंगा कर दिया। टाउन प्लानिंग की मुख्तलिफ कमर्शियल फीसों में इजाफा कर दिया गया। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नई फीसों का इतलाक हो गया। LDA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में भी इजाफा किया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस भी दोगुना हो गई। कमर्शियल फीस में इजाफा होने की वजह से लोगों ने इमलाक कमर्शियल करवाने के लिए LDA से रुजू करना छोड़ दिया। रवां माली साल के पहले 2 माह में LDA को कमर्शलाइजेशन की सिर्फ 13 दरखास्तें मौसूल हुईं। जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलबर्ग मेन बॉलीवुड पर कमर्शियल फीस फी मरला 22,58,000 रुपए हो गई। MM आलम रोड पर LDA की कमर्शियल फीस फी मरला 21,11,000 रुपए तक पहुंच गई। जोहर टाउन में मरकजी शाहराह पर कमर्शियल फीस 7,71,764 रुपए हो गई। गार्डन टाउन और इचरा के इलाके में कमर्शियल फीस फी मरला 8,05,000 रुपए मुकर्रर। गार्डन टाउन सिविक सेंटर में फी मरला मुस्तकिल कमर्शियल फीस 10,09,000 रुपए तक जा पहुंची। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और रेवेन्यू के अफसरान को नई फीसों के मुताबिक चालान जारी करने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर लाहौर और DG LTA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ शोबों का इजलास हुआ। इजलास में शाहदरा फ्लाईओवर, अकबर चौक और बेदिया रोड अंडरपास की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि खालिद बट चौक अंडरपास पर काम तेज़ी से अब जारी है। शहर में जारी तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम दिन रात किया जा रहा है। मुजवज़ा मनसूबे बाबू साबुता न्याजी इंटरचेंज की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में LDA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पर जारी तरक्याती कामों की प्रोग्रेस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। सरबराह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स संतनगर, ताजपुरा और गुलबर्ग के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रवामा शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे। कमिश्नर ने तमाम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के फार्म LDA मोबाइल एप्लीकेशन में शामिल करने की हिदायत भी की है। LDA का अब एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू शुरू करने का फैसला है। मंसूबे के लिए 10 अरब 84 करोड़ रुपए का तखमीना लगा लिया गया है। बाबू साबू इंटरचेंज से न्याजी इंटरचेंज तक 7.3 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। मंसूबे की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर के अहम दाखिली रास्ते बाबू साबू पर ट्रैफिक के मसाइल। LDA का ट्रैफिक रवानी में बेहतरी लाने के लिए अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा शुरू करने का फैसला। एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू बनाया जाएगा। LDA ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए। मंसूबे के लिए 10 अरब 84 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 38 करोड़ 97 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के लिए बंद रोड पर सबवेज भी तामीर किए जाएंगे। PC1 के मुताबिक बाबू साबू इंटरचेंज से न्याजी इंटरचेंज तक 7.3 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ट्रैफिक रवानी की बेहतरी के लिए 4 लेन ड्यूल कैरेजवे तामीर किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ में पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए एड ग्रेड वर्क किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में सड़क की तामीर न होने से रोजाना गुजरने वाली 1,32,145 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुश्किलात का सामना है। और अभी आपको बताएं 1 करोड़ 20 लाख तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल के लिए किताबें तैयार करने से साफ इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज की इस रिपोर्ट में। 1 करोड़ 20 लाख तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का अगले तालीमी साल के लिए किताबें तैयार करने से साफ इनकार
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने फंड्स की कमी के बायस हाथ खड़े कर दिए। PCTB के MIU को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि अगले तालीमी साल के लिए किताबों की तैयारी की मद में बहुत कम फंड्स मुख्तस किए गए हैं। 2024-25 के लिए 54 मिलियन किताबों के जैकेट्स की डिमांड की गई थी। मरासले में 10 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने का भी मुतालबा किया गया है। PCTB की गवर्निंग बॉडी ने भी कहा है कि सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स की किताबें तैयार की जाएं जिनके वाजिबात क्लियर हैं। इस सूरत हाल में अगले साल के लिए पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी मुश्किल दिखाई दे रही है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। एहसासात और जज्बात रंगों की जुबान से आया लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात के फन पारे नुमाइश में सज गए। डिग्री शो में फनकारों ने समाजी और माशरती मसाइल को उजागर किया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स की जानिब से अलहमरा आर्ट गैलरी में 3 रोज आर्ट नुमाइश और डिग्री शो का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फनून लतीफ़ा से मुंसलिक शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिद्दत और रवायात का हसीन इम्तिजाज लिए फनपारे मरकज़े निगाह रहे। शुरका ने तुलबा के आर्ट वर्क को खूब सराहा। तुलबा और उस्तादिज़ा का कहना था कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी तख्लीकी इदारा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह के प्रोग्राम्स होना जरूरी हैं। एंजाइटी को कोप करने के लिए मैंने उसको एक फ़न चीज़ से रिलेट किया ताकि मैं उसको बेहतर समझ सकूँ या उसको एक कम चीज़ समझ के अपने अंदर से ख़त्म कर सकूँ। ये दिखा रहा है कि किस तरह से सोसाइटी की हार्शनेस एक इंसान को अफेक्ट करती है, जबकि सामने वाला देखने वाला शख्स नहीं सोचता कि इस शख्स पे कैसे वो बात असरअंदाज होगी। अगर हम अपनी गैलरी के लिए ख़रीदना चाहें, जैसे या मैं ख़रीदना चाहूँ, तो इनकी मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को जो सपोर्ट कर सकते हैं यंगर स्टूडेंट्स को और इनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, देना चाहिए। डिग्री शो 13 सितंबर तक जारी रहेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ASI जुल्करनैन हैदर की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा जुल्करनैन हैदर ने सख्त मुआशी हालात में बच्चों को पढ़ाया। IG पंजाब का ASI की अहलिया और वालिद को भी खराज तहसीन। तमाम नॉर्म्स को एक शख्सियत ने चैलेंज किया और बहुत सारे हमारे कांस्टेबल साहिबान और थानेदार साहिबान और अफसरों ने चैलेंज किया, जिनमें से एक से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ASI जुल्करनैन हैदर, आप कैसे हैं? मैं सर ठीक हूँ। कितनी नौकरी हो गई आपकी? सर 33 साल होगी सर। बच्चियों को पढ़ाने के लिए थोड़ी सी तनख्वाह के साथ ये कैसे मुमकिन हुआ? कहाँ तक पहुँचाई बेटियाँ आपने? ये सर मैंने ना अपनी आसाइश कोई चीज़ नहीं देखी। नंबर 1 पे सबसे बड़ा किरदार मेरे वालिद का है, जिन्होंने अपनी वालदा की जो मोर सी ज़मीन है वो 6 एकड़ सेल की, वो बेची तनख्वाह से। और आपकी जो वाइफ है वो भी पढ़ाती हैं? वो 70 स्केल में गवर्नमेंट में हेड मिस्ट्रेस हैं। उन्होंने सारी पे जो है इन बच्चों पे लगाई है। कितनी को मुश्किल हुई उनको पढ़ाने में? बेटियों के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ तक पहुँची? सबसे जो पहली बेटी है ये रैबर मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट कर लिया इसने, डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बन गया है। और ये काबिल ज़िक्र बात यह है कि मेरी बेटी शेवपुरा से बाटी लोकल वैन पे यहाँ से रक्षा लिया इसने स्टेशन पे, स्टेशन से रक्षा लिया और जोड़े पुल पे गई है। और 5 साल इसने ऐसे ये सफ़र तय किया है, कोई फजूल खर्ची नहीं की। 1000 रुपया पर डे मैं इसको देता था, उसमें से भी ये 200-300 रुपया इसका बच जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस साल के एंड में इंशाल्लाह 12 अरब रुपए पे वेलफेयर फंड को ले जा चुके होंगे और वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह के बच्चे और बच्चियों के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। इस तमाम चीज़ का मकसद ये है कि अगर आप पुलिस में हैं तो फिर आप बढ़ते जालिम का हाथ रोकें और मजलूम का साथ दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। कागज़ के टुकड़े पे सच लिखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आ गई। शहर में जारी तरक्याती कामों पर 25 करोड़ रुपए का अब इजाफी बोझ पड़ेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। डीजल और पेट्रोल के निर्ख बढ़ने से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। LDA के मंसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जारी मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को भी डिमांड कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से इनपुट रेट्स हर 1 माह बाद रिवाइज किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनपुट रेट्स को हर 15 रोज बाद रिवाइज करने की इस्तदा कर दी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 दिन बाद इजाफा किया जाता है। दूसरी जानिब शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा और 25 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जारी तरक्याती मंसूबों के बिल नए पेट्रोल रेट के मुताबिक अदा करने होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुस्तकबिल के टेंडर्स की लागत में भी इजाफा होगा। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तरक्याती स्कीमों पर भारी पड़ने लगी हैं। ज़ेर अल्तवा स्कीमों के फंड्स में दुगना इजाफा होगा। सियासी जमातों के मकामी नुमाइंदे तरक्याती फंड्स जारी न होने पर नाराज़ हैं। शहर में तरक्याती कामों के लिए सरकारी खजाने से एक धेला भी जारी न हो सका। इमरान अकबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पंजाब में मकामी हुकूमतें सियासी कशमकश का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें भी तरक्याती स्कीमों पर असरअंदाज। महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर शुदा 183 अरब रुपए के बजट को ब्रेक लग गई। सड़कों की तामीर, सीवरेज सिस्टम, कब्रस्तानों और पार्क की बहाली की स्कीमें ज़ेरे इल्तवा। वॉल सिटी लाहौर की स्कीमें भी तकमील की मुंतजिर। महकमा बल्दियात के ज़ेरे इंतजाम 183 अरब रुपए का बजट जूं का तूं पड़ा है। मजमूई तौर पर 628 तरक्याती स्कीमों के लिए ये बजट मुख्तस किया गया है। जनरल बस स्टैंड की तामीर, स्लाटर हाउस के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पंजाब सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए इस्तेमाल न हो सके। पब्लिक पार्क के लिए 27 करोड़, मॉडल कैटल मार्केट्स के लिए 15 करोड़ रुपए जारी न हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए का इजरा भी रुक गया। शाही कला की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस, ताहम काम शुरू न हो सका। दिलकश लाहौर के लिए 20 करोड़ रुपए भी फाइलों में बंद हैं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब की 229 मकामी हुकूमतों में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वस्ती पंजाब के इलाकों से गुमशुदा बुद्ध तहजीब के 2000 साल कदीम आसार और नवादरात की दरियाफ्त हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमूमी तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि बुद्ध सल्तनत KPK और पंजाब में टेक्सला तक महदूद थी, लेकिन अब इस हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है। सरगोदा और झंग के दरमियानी इलाकों से बड़ी तादाद में गुमशुदा बुद्ध तहजीब के आसार दरियाफ्त किए गए हैं। इन आसार की दरियाफ्त से इस अमर की भी निशानदेही हुई कि बुद्ध दौर के बासियों ने इन इलाकों में भी बड़ी तादाद में अपने स्टूपास और अपनी आबादियाँ तामीर की थीं और अपने मजहब की तशहीर के लिए मुतअद्दिद मुनफरिद अंदाज भी मुतारिफ कराए। आप टेक्सला से डाउनवर्ड आ जाएं तो जो जेहलम का सारा एरिया है और जो साल्ट रेंज का एरिया है और सोन वैली है, इसकी अगर जोग्राफ़ी देखी जाए तो ये वैसी है जैसे हमें टेक्सला में या KPK में मिलती है। तो मेरा जो यकीन है वो ये है कि इन इलाकों में भी स्टूपाज मौजूद हैं और मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं। वस्ती पंजाब से तारीख का धारा तब्दील कर देने वाले बुद्ध तहजीब के सामने आने वाले नवादरात में बुद्ध इबादत गाहों की बाकियात, रोज़मर्रा इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया और आर्ट के ऐसे शानदार नमूने सामने आए हैं कि बेसाख्ता इन्हें बनाने वालों को दाद देने को जी चाहता है। इसमें अब हम देखें तो इसमें आपको कहने स्टूपास हैं, स्टूपास के अलावा रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, कैरेंथियन है, डेंटल है, इसकी एक ख़ास किस्म है जिसके तहत वो उन्होंने अपने वो स्टूपास वगैरह तमीर किए हुए थे। उम्मीद वासिक है कि अभी इन इलाकों से तारीख के मज़ीद गुमशुदा अबवाब